Hello children, today we will be learning about soils of India. We have different soils in India. What is soil? Basically we will understand firstly what is soil. Soil is the underground or surface area of the earth. It's made up of pieces like rock, silt, clay, sand, clay and remains of plants and animals. It is a renewable resource. Then it makes the upper layer of the earth where we grow our plants. It is made up of mud and minerals. Minerals also get deposited by wind and rain, dead animals, living things of plants and animals called humus. What is called humus? Humus is the living and dead things of plants and animals is called humus. Now, what is the importance of soil? It supports plant life and enhances their growth. It's the ability to store water. It has the ability to store water and not only allow it to support plant life but also allows it to replenish groundwater. अब soil का हमारे लिए क्या क्या मतलब है? Soil हमारे को plants को grow करने में help करती है और दूसरा सॉइल के अंदर जब हम पानी देते हैं तो उससे प्लांट लाइफ तो जीवन मिलता है, जैसे हम लोगों को जीवन मिलता है एयर से, वाटर से, इस तरह प्लांट्स के लिए भी वाटर और एयर इक्वली इम्पोर्टेंट है. और वाटर से सॉइल इनहेंस होती है, रिलिश होती है. Now, how is soil formed? Soil is formed by weathering of rocks, by winds, water and roots of plants. When they mix with organic matter, they are called soil. अब soil कैसे बनती है? जब weather, जो हमारा atmosphere है, जो weather है, climate है, उसके अंदर rocks में humid बढ़ जाता है, heat बढ़ जाती है, तो वो टूट जाते हैं. या wind के साथ जब वो rocks ऊपर से नीचे आते हैं mountain से, तो भी वो break करके pieces में आते हैं. या पानी के साथ जब minerals and mud आती है, that is also one reason for formation of soil. या roots of plants जो होते हैं वो dry हो जाते हैं, या वो जो भी dead materials होता है वो जब सूख जाता है मिट्टी बन जाता है. या फिर plant जब organic matter के साथ मिल जाते हैं तो तब भी soil बनता है. It is a natural process that takes a very long time. ये by nature है सॉइल बनने का, इसमें ह्यूमंस कुछ नहीं कर सकते. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ नेचर. इट टेक्स थाउजेंड ऑफ इयर्स टू फॉर्म सॉइल. रॉक्स ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस बाय वाटर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, सन, विंड एंड फॉर्म्स सैंड. व्हेन दे मिक्स विद ऑर्गेनिक मैटर दे आर कॉल्ड सॉइल. इट गेट्स कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स थ्रू विंड, वाटर एक्सेट्रा बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ स्लोप्स ऑफ द लैंड. Now let's discuss different types of soils. Alluvial soil. They can be called transported soils from mountains by rivers. अब alluvial soil क्या है? जो ऊपर से mountain से rivers के साथ बहता हुआ minerals, soil, mud, ये सब चीजें नीचे आती हैं और साइड में जाके एक river की साइड में जाके डिपॉजिट हो जाती हैं. They are formed by sand and silt brought by the river in the river plains or coastal delta. They get deposited in the river banks during flooding. They are very fertile. In India, they are found in the northern plains, coastal plains and delta of rivers and Gangetic plains of Punjab, UP and Bihar. But अब ये जो alluvial soil है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? ये कैसे बनती है? जब ऊपर माउंटेन से रिवर्स के साथ सिल्ट आता है, सैंड आता है, मड आती है, मिनरल्स आते हैं, वो जाके कहाँ डिपॉजिट होते हैं? या तो रिवर के प्लेन्स में, मतलब जहां से रिवर पास कर रही है उसके साइड्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, या फिर कोस्टल डेल्टास पे होते हैं. और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में या कोस्टल प्लेन्स में. अब डिफरेंट इधर कौन कौन से क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं? राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, टबैको, कॉटन, जूट एंड ऑयल सीड्स.
Now second is black soil. It is called lava soil as it formed from the lava rocks. It has high clay content and hence retains a lot of moisture. During summer season, they develop cracks. In India, they are found in Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. Crops grown are cotton, jowar, linseed, bajina, tobacco, castor, sunflower and millets. अब ब्लैक सॉइल क्या है? जो लावा सॉइल कहते हैं जिसे, फ्रॉम लावा रॉक्स, जहां से लावा निकला होता है वहां पे रॉक्स बन जाते हैं, और वो जब रॉक्स टूटते हैं, बिल्कुल पीसेस हो जाते हैं, तो वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब ये कैसे होते हैं? इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर मॉइस्ट रिटेन हो जाता है, और ये समर सीजन में क्या होता है? इसका सारा मॉइस्ट सूख जाता है धूप से, तो हमारी उस मिट्टी के अंदर या उस सॉइल के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं. ये कहाँ पे ज्यादा मिलता है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश. और क्रॉप्स कौन कौन से ग्रो कर सकते हैं? कॉटन, ज्वार, लिंसीड, बिजीना, टोबैको, कैस्टर, सनफ्लावर एंड मिलेट्स. नेक्स्ट कम्स रेड सॉइल. रेड सॉइल कैसे बनता है? रेड सॉइल बनता है वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स से. The red color is due to the presence of iron present in the soil. Iron होता है soil के अंदर, तो वो red color में convert हो जाता है soil. This soil is not very fertile and does not retain moisture. इसके अंदर moisture नहीं होता इसमें हमें पानी देना पड़ता है बार बार, और ये ज्यादा fertile नहीं होती है, मतलब उपजाऊ नहीं होती है. Farmers mix it with manure to make them fit for cultivation. In India, it is found in parts of Tamil Nadu, Karnataka, some part of Andhra Pradesh, Odisha and Jharkhand. Crops grown here are groundnut, millet, tobacco, potato, rice, wheat and sugarcane. इसके अंदर मैंने आपको बताया पानी हम ज्यादा देना पड़ता है हमें, और ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होती. अब फार्मर्स इसको कैसे यूज करते हैं? खाद के साथ मिला के. और ये वाली सॉइल कहाँ मिलती है ज्यादातर? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के कुछ पार्ट्स में. और क्रॉप्स कौन कौन से हम ग्रो कर सकते हैं? ग्राउंडनट, मिलेट, टोबैको, पोटैटो, राइस, व्हीट एंड शुगर केन. लैटराइट सॉइल. व्हाट इज लैटराइट सॉइल? लैटराइट सॉइल मींस ब्रिक. लैटिन वर्ड से ये वर्ड ड्राइव किया हुआ है. दे आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर देयर इज हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल. ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है जहां पे हाई टेम्परेचर होता है और तेज रेनफॉल हुई भी होती है. द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इज लीच ड्यू टू हेवी रेनफॉल एंड हेंस नॉट वेरी फर्टाइल. फिर से ये रेड सॉइल की तरह होती है जो ज्यादा फर्टाइल नहीं होती. इट बिकम्स वेरी हार्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू ड्राई वेदर. और ये बिल्कुल पत्थर जैसी बन जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है जब यहाँ पे वेदर बिल्कुल ड्राई हो जाता है. फाउंड इन पार्ट्स ऑफ असम, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड मध्य प्रदेश. विद मैन्योर एंड अदर सॉइल सपोर्ट मेजर्स दे आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट, मिलेट, टी एंड कैश्यू नट. दिस इज अनदर टाइप ऑफ सॉइल विच इज लाइक रेड सॉइल, जो जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है या हेवी रेनफॉल होती है, तो ये वाली सॉइल वहीं पे ज्यादा पाई जाती है. लेकिन इसमें फर्टिलिटी नहीं होती ज्यादा. और ये कहाँ पे हमें मिलती है ज्यादा? असम, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और मध्य प्रदेश में. सेम वे मैन्योर के साथ इसको हम मिलाते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं किस चीज को ग्रो करने में? ग्राउंडनट, मिलेट, टी, कैश्यू नट्स. नाउ कम्स माउंटेन सॉइल. माउंटेन सॉइल से तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि व्हाट इज माउंटेन सॉइल. माउंटेन सॉइल का मतलब होता है जो पहाड़ों की मिट्टी. और ये कहाँ पे मिलती है? पहाड़ों में मिलती है, हिल्स में मिलती है, हिल स्लोप्स पे मिलती है. इट इज फॉर्म बाय डिपॉजिट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे आर रिच इन ह्यूमस. अभी ह्यूमस मैंने बताया था ना क्या होता है. ह्यूमस क्या होता है? प्लांट और एनिमल्स, डेड प्लांट और एनिमल्स का जो मिक्सचर बनता है, ऑर्गेनिक मैटर बनता है, उसको हम ह्यूमस कहते हैं. इन इंडिया इट इज फाउंड इन कश्मीर, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. जहां जो भी हमारे पहाड़ी एरियाज हैं,
ये वहीं पे पाई जाती है। क्रॉप्स टी, कॉफी, स्पाइसेस, व्हीट, बार्ली एंड मेज एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। अब ये वाली जो सॉइल है ना, ये स्लोप्स पे मिलती है, पहाड़ों के स्लोप्स पे मिलती है, हिल्स के स्लोप्स पे मिलती है। और ये डिपॉजिट किससे होती है? प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गेनिक मैटर से डिपॉजिटेड होती है और रिच ऑफ ह्यूमस होती है, मतलब बहुत उपजाऊ होती है। इन इंडिया अब ये कहाँ कहाँ मिलती है हमें? कश्मीर, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्रॉप्स क्रॉप्स कौन से हैं इसके? टी, कॉफी, स्पाइस, wheat, barley, maize and tropical fruits. Desert or sandy soil. They are found in arid region where there is very less rainfall. Due to high temperature, less rainfall and dry climate, it has very less humus and moisture, hence not suitable for crops. In India, the soil is found in Rajasthan, Western Punjab and Haryana and Kutch region. The soil is sandy and very dry. With some water support, millet and pulses can be grown, else it is best suited for shrubs and cactus. अब डेजर्ट और सैंडी सॉइल का क्या मतलब होता है? रेत वाला एरिया, सिर्फ रेती रेत। अब ये एरिया कहाँ पे ज्यादातर मिलता है? हमें राजस्थान में मिलता है, जहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ह्यूमस और मॉइस्चर यहाँ पे होता ही नहीं है, लेस होता है, कम होता है ये सब चीज, क्योंकि जब प्लांट्स ही नहीं ग्रो करेंगे तो ये कहाँ से हमें मॉइस्चर मिलेगा या कहाँ से लैंड को एनिमल्स और प्लांट्स का ह्यूमस मिलेगा। इंडिया में ये राजस्थान, वही राजस्थान, पंजाब, वेस्टर्न पंजाब, हरियाणा, कच्छ रीजन में ये वाला ज्यादा हमें मिलता है। सैंड कहते हैं ना, डेजर्ट्स है, सैंड सॉइल वही है, उसी को कहते हैं डेजर्ट्स को डेजर्ट सॉइल कहते हैं। यहाँ पे अगर पानी दिया जाता है इस सॉइल के अंदर तो हम कुछ मिलेट्स और पल्सेस की क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये जगह किस चीज के लिए बेटर है? श्रब्स और कैक्टस, जिनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। नाउ वी कम टू सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स जब टॉप सॉइल जो होती है, लैंड के ऊपर की जो सॉइल होती है, वो वाटर और विंड के साथ वॉश अवे हो जाती है। This happens only when it is loose, मतलब सॉइल बिल्कुल लूज होगी तभी वो वॉश अवे हो जाएगी। The top soil supports growth of plants and is fertile. When the top soil is eroded, it causes danger to the planet Earth. अब अगर टॉप सॉइल हट जाती है तो फिर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारा जो मिनरल्स और सिल्ट सब कुछ आता है ऊपर से पहाड़ों से, वो सारा प्लेन लैंड्स में लैंड को टॉप सॉइल ही बनाता है। अब नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? बारिश, हेवी बारिश, विंड, फ्लड्स जो नेचुरल कॉज है। अच्छा, फिर कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि ट्रीज कट जाती हैं तो सॉइल लूज हो जाती है, क्योंकि रूट्स ही सॉइल को बाउंड करके रखती हैं, तो तब भी सॉइल इरोजन होता है। या फिर हम जब कैटल, अपने जो हमारी कैटल है उसको हम जब टॉप सॉइल से एक्सपोज कर देते हैं, जब वो सारा घास खाने लग जाती है, तो जब ऊपर सूख जाता है सब कुछ, तो वो लैंड मिट्टी लूज हो जाती है, तो वो सॉइल इरोड हो जाती है। नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? प्लांट मोर ट्रीज on river beds to protect from erosion by floods. Plant more trees on flat land to prevent soil erosion from strong winds. मतलब हमें प्लांटिंग ज्यादा करनी है, प्लांट्स को ग्रो करना है। जितना हम ज्यादा ग्रो करेंगे उतना हम लैंड को फर्टाइल भी बनाएंगे और सॉइल इरोजन को रोक भी सकते हैं। build dams to prevent floods and linking of rivers where possible, मतलब डैम्स बिल्ड करके फ्लड्स को हम रोक सकते हैं। फिर फॉलो स्टेप फार्मिंग कर सकते हैं। maintain good vegetation to open lands to protect topsoil. To maintain the fertility of the soil, follow crop rotation, plant different crops in the same field in rotation. एक ही लैंड के अंदर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, तब भी हम सॉइल इरोजन को रोक लेते हैं। या फिर अच्छी मेन्योर, नेचुरल मेन्योर को उसमें हम यूज करते हैं, तब भी हम करते हैं। जैसे काउ डंग को हम उसमें मिलाते हैं अपनी मिट्टी के अंदर,
या सॉइल के अंदर, तो भी हमारी सॉइल इनरिच हो जाती है और सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं. सो children, now I hope you have understood what is soil, what is the importance of soil in our life. Thank you.